Hello students, good morning to all. Students, today we will learn a new topic that is called Bellman-Ford algorithm. Bellman-Ford algorithm is also used for single source shortest path algorithm. Single source shortest path problem is a optimization problem, and for this problem we have two algorithms. One is called Dijkastra algorithm, and Dijkastra algorithm are based on the greedy approach, and the greedy approach in which we find the a procedural steps to find the solution of the problem, given problem. And the drawback of Dijkastra algorithm is that it can't be work with negative weight, or it may be gives the correct answer or may not give the correct answer if the directed graph with negative weights. For that purpose, the Bellman-Ford algorithm is used in spite of Dijkastra algorithm if the directed graph is given with negative weights on the edges, right? So Bellman-Ford algorithm. Now we will see the how the Bellman-Ford algorithm will works. In Bellman-Ford algorithm, for example, here is the graph in which there are this is the directed graph and weight is assigned on each edge of the graph. Here we see there are some positive weights and there are some negative weights, right? So how the Bellman-Ford algorithm will works? It will be works as follows. As we know, the Bellman-Ford is based on the dynamic programming, and in dynamic programming, this approach will uh, try out all the possible solutions. And in dynamic programming it will try out all the possible solutions and then pick the best one solution for the answer, right? So in dynamic programming, as we have used a relaxation process in Dijkastra algorithm, we have already studied. In dynamic programming, relax all the edges for n minus 1 times. Means in Bellman-Ford algorithm, it will apply the relaxation process many times. Then how many times it will apply the relaxation process for all edges for n minus 1 times. N minus 1 times means what is n? N is the number of vertices in the graph. For example, here is total 7 vertices. Then how many times the relaxation will be will be applied? The relaxation will be applied n minus 1, yani ki 7 minus 1 means 6 times the 6 edges will be relaxed, right? For example, now we will see how the Bellman-Ford algorithm will be works. Now, for example, there are total 6 edges, uh, and the edges are the list of edges are as follows: 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. There are 3 edges. Then 2 to 5, 3 to 5, 4 to 3, 4 to 6, 6 to 7, and 5 to 7. There are total number of edges, right? Bellman-Ford algorithm also provides the longest path for a given directed graph. That's why, because from 1 to 7 means 1 to 7, there may be total 6 edges in a path. So that's why it is also called a longest path algorithm. So now how the Bellman-Ford algorithm will be works. Initially, we can start from any of the vertex, but we have to select one of the vertex as a source vertex. Source vertex may be either 1, 2, 3, 4, any vertex you can choose. But initially, I have chosen one as a source vertex. Now,
if we select a source vertex as a 1, we have assigned the weight of this vertex as 0. Now we have to relax this source vertex. सोर्स वर्टेक्स को जब हम रिलैक्स करते हैं तो रिलैक्सेशन का प्रोसेस क्या है? रिलैक्सेशन का प्रोसेस है इफ द डी यू, अगर हम मान लीजिए इसको हम यू मान लेते हैं और दूसरी वर्टेक्स को वी मान लेते हैं, तो if the du means 0 plus cost of that vertex is less than the weight of this vertex, then we have to उस केस में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए इसको हमने u माना है और इसको हमने v माना है, तो इनिशियली इसको हमने सोर्स वर्टेक्स को 0 असाइन किया इसका वेट, और बाकी सभी वर्टेक्स का वेट हमने इन्फिनिटी असाइन करा दिया इनिशियली, राइट। इनिशियली जब हमने इसको असाइन करा दिया, अब बात आती है रिलैक्सेशन की। तो जब रिलैक्सेशन करते हैं तो रिलैक्सेशन के अंदर रिलैक्सेशन का प्रोसेस ये है कि द वेट ऑफ दिस वर्टेक्स प्लस द डिस्टेंस ऑफ या कोस्ट ऑफ दिस एज शुड बी लेस देन द वेट ऑफ दिस वर्टेक्स या डिस्टेंस ऑफ दिस वर्टेक्स। तो अब यहाँ पे देखिए 0 plus 6 means 6 is less than infinity. Yes, it is less than infinity. Then we have to cut this infinity and put the new weight of vertex 2 as a 6. 6 का वेट 2 का वर्टेक्स 2 का वेट हमने क्या कर दिया 6 कर दिया। इसी प्रकार इसका वर्टेक्स का वेट 0 है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 5 आता है। 0 plus 5 यानी कि टोटल वेट कितना आता है 5, यानी कि डी यू प्लस सी यू वी कितना आता है 5, दैट इज लेस देन इंफिनिटी। यस, दैट इज लेस देन इंफिनिटी, सो वी हैव टू पुट 5 इन स्पाइट ऑफ infinity. Again here is also the same process will be applied, right? यहां पे हमने 1 को रिलैक्सेशन कर दिया। now we have to 3 vertex 2 3 and 4, 2 and 3 and 4। यहां से देखो अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 से 2 पाथ्स जा रहे हैं, 4 से 2 पाथ जा रहे हैं, एक 3 की तरफ जा रहा है, एक 6 की तरफ जा रहा है। इसका वेट 4 का जो वेट है वो अपने आप में कितना है 5, तो 5 minus 1 कितना आया 4, 4 इज लेस देन इंफिनिटी। यस, 4 इज लेस देन इंफिनिटी, तो 6 का वेट कितना आ गया, जब इसको रिलैक्स करेंगे तो वेट कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह 5 minus 2, यहाँ पे भी एज जा रही है, तो 5 minus 2 कितना रह गया 3, तो 3 इज ऑलरेडी इसका वेट जो था वो कितना था पहले 5, तो इसका नया वेट कितना आ गया 3, सो वी हैव टू रिलैक्स इट, यानी कि नया जो वेट होगा वर्टेक्स 3 का वो कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरह 3 को हम रिलैक्स करेंगे तो 3 का वेट कितना आया था 5, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो 3 इज लेस देन, पहले से इसका वेट कितना था 3 था, अब इसको रिलैक्स किया तो पहले से इसका वेट कितना था 6 था, अब इसको जब रिलैक्स किया तो नया वेट कितना आ गया 3, 3 इज लेस देन 6। यस, 3 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे 6 की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, राइट। ये तीनों वर्टेक्स रिलैक्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसका वेट कितना आया था लास्ट में, पहले कितना आया था 6 था, तो 6 से -1 इसका वेट कितना आया 5। इसी तरह इसका जो वेट कितना था 4, 4 + 3 कितना हो गया 7, और इधर से 5 + 3 कितना हुआ था 8, पहले 8 आया था। अब जब नेक्स्ट टाइम पे जब रिलैक्स करेंगे तो इसका वेट कितना आया 4 + 3 7, यानी कि 8 से कम आ रहा है 7, तो नया वेट कितना क्या रह गया इसका 7 रह गया। इस तरह से हम 1 by 1 रिलैक्सेशन करते जाएंगे, और ये रिलैक्सेशन कितनी टाइम होगा 6 टाइम्स होगा,
और आफ्टर 6 टाइम, देखो जब इनिशियली हम रिलैक्सेशन करेंगे तो मोस्ट ऑफ जो वर्टेक्सेज का वेट है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद जब सेकेंड टाइम पे रिलैक्सेशन करेंगे तो कुछ वर्टेक्सेज का वेट चेंज होगा, बाकी का चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम चलते हैं यहाँ पे, तो इसका वेट 5 है, 5 माइनस टू 3, 5 - 2 3, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 + 1 कितना आ रहा है, 4, 4 आ रहा है। 4 इज नॉट लेस देन 2, इसका ऑलरेडी वेट कितना है, 2 है। और इस यहां से देखो 3 - 2 कितना आया, 1, तो ये कितना हो गया, 3 के बजाय अब नेक्स्ट टाइम पे कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना। तो 1 - 1 इसका वेट कितना आया, 0, 0 इज लेस देन 2, यस 0 इज लेस देन 2, तो 5 का वेट कितना हो गया, 0 हो गया नेक्स्ट रिलैक्सेशन में। इसी प्रकार इसका वेट कितना हुआ, 4, 4 + 3 कितना हुआ, 7, पहले कितना था 8, अब कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जब रिलैक्सेशन करेंगे तो देखो इसका वेट कितना आया, इसका वेट कोई चेंज नहीं होना है, इसका भी कोई चेंज नहीं होना है, इसका भी कोई चेंज नहीं होना है, लेकिन इसका वेट कितना आया, 0 आया। तो 0 + 3 कितना हुआ, 3, तो 3 इज द लेस देन 5, तो इसका मिनिमम वेट कितना हो, यानी कि थर्ड जब रिलैक्सेशन करेंगे, थर्ड टाइम जब रिलैक्सेशन करेंगे तो इसका वेट कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब फोर्थ टाइम हम रिलैक्सेशन करेंगे, तो फोर्थ टाइम जब रिलैक्सेशन करेंगे तो इसके अंदर देखो कोई चेंजेज नहीं आता है, जो वेट पहले से था वही वेट है। फिफ्थ टाइम पे भी कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि अब फोर्थ और फिफ्थ टाइम पे कोई चेंजेज नहीं आ रहा है। रिलैक्सेशन हमें कितने टाइम करना है, 6 टाइम्स करना है, n - 1 टाइम्स करना है। तो जब रिलैक्सेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, इट मींस वी हैव अचीव्ड आवर सॉल्यूशन नाउ। तो सॉल्यूशन एज ए रिजल्ट, द वेट ऑफ दीज वर्टिसेज आर, 1 का जो वेट है वो 0 है, 2 का कितना निकल के आया, 1 निकल के आया लास्ट में। इनिशियली इंफिनिटी था, फिर 6 हुआ, फिर 3 हुआ, लास्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। 3 का वेट कितना हुआ, 3 का इनिशियली इंफिनिटी था, फिर 5 रहा, नेक्स्ट रिलैक्सेशन के अंदर 3 हो गया। 4 का, 4 का इनिशियली इंफिनिटी था, देन रिलैक्सेशन किया तो 5 आया, 5 से इसका नीचे कम नहीं हो रहा है। अच्छा 5 का, वर्टेक्स नंबर 5 का इंफिनिटी था इनिशियली, फिर इसका जब रिलैक्सेशन किया फर्स्ट टाइम पे तो कितना आया, 5 आया। नेक्स्ट टाइम जब रिलैक्सेशन किया तो कितना आया, 2 आया। नेक्स्ट टाइम जब रिलैक्सेशन किया तो कितना आया, 0 आ गया। इसी तरह 7 का इनिशियली इंफिनिटी था, फर्स्ट टाइम रिलैक्सेशन किया कितना वेट आया, 8 आया। नेक्स्ट टाइम जब रिलैक्सेशन किया कितना आया, 7 आया। नेक्स्ट टाइम जब रिलैक्सेशन किया कितना आया, 5 आया। और लास्ट टाइम पे जब रिलैक्सेशन किया कितना आया, 3, 3 से नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब दिस इज द लास्ट रिलैक्सेशन। जब कोई चेंजेज नहीं आ रहा हो या उससे कम रिलैक्सेशन नहीं हो रहा हो तो वही हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम, दैट that depends on the number of edges and the relaxation of each vertex। ठीक है ना। तो हमारे पास में नंबर ऑफ एजेज कितनी है, सपोज करें ई नंबर ऑफ एजेज है या एन नंबर ऑफ एजेज है, और रिलैक्सेशन हमें कितनी बार करना है, n - 1 टाइम्स करना है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेज प्लस टोटल नंबर ऑफ रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन कितना हो गया, v - 1 यानी कि n - 1, यानी कि we can say that n into n - 1 means n into n. So the complexity for this Bellman-Ford algorithm will be big of n square. This is the average case complexity. Now, if the graph is a complete graph, means if there is a cycle in the graph,
then each vertex connected to the other vertex directly, then the number of edges will be as follows: n into n minus 1 is the number of edges, n into n minus 1 divided by 2 is the number of edges for the complete graph. So here for the complete graph the number of edges will be n square, and the number of relaxations will be carried out is n. So the total complexity for the complete graph will be n cube, big O of n cube, right? So this is the worst case complexity for the Bellman-Ford algorithm, and the worst case complexity will be comes when there is a complete graph with a cycle. For example, here is a graph in which there are 4 vertex 1, 2, 3 and 4, and here is the assigned weights for these edges. इनिशियली 1 से हमने स्टार्ट किया है, तो इसका वर्टेक्स का जो वेट है वो कितना हो गया 0, तो 0 प्लस 4 बाकी सभी वर्टेक्स को हम क्या कर देंगे इन्फिनिटी वेट असाइन कर देंगे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इनिशियली 1 से 2 एजेस जा रही है, एक 2 की तरफ एक 4 की तरफ, तो इसका वेट कितना आ रहा है डी यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू, कॉस्ट ऑफ दिस एज, ठीक है ना। तो 0 प्लस 4 इज लेस देन इन्फिनिटी, यस, इसको रिलैक्स कर दिया, इन्फिनिटी की जगह क्या आ गया 4 आ गया। इसी तरह 0 प्लस 5 इज लेस देन इन्फिनिटी, यस, तो इन्फिनिटी की जगह क्या आ गया 5 आ गया, राइट। अब पहला रिलैक्सेशन हो गया, अब नेक्स्ट रिलैक्सेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसी तरह 5 प्लस 3 कितना आया 8, और इधर 4 इससे कोई एज जा नहीं रही, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 माइनस 10 कितना आया -2, -2 इज लेस देन 4, यस, -2 इज लेस देन 4। सो इस तरह से हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं, तो इस तरह से ये रिलैक्सेशन आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एज और होती, और वो एज होती 2 से 4 को, तो यहाँ पे क्या बन जाता है एक साइकिल बन जाता है। अब सपोज करें कि इस साइकिल में हमने इस एज में हमने वेट असाइन करा दिया इसको 5। अब देखना, अब इसको हम रिलैक्सेशन करते हैं, तो जब हम इसको रिलैक्सेशन करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, देखो इनिशियली वही वर्टेक्स हमने ली है 4, तो इसका वेट कितना आ गया 4 आ गया, इसका वेट कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 माइनस 10 कितना हुआ -2, -2, ओके, -2 हो गया, रिलैक्सेशन कर दिया। अब एक तरह से नंबर ऑफ रिलैक्सेशंस कितनी बार करने हैं हमें 3 टाइम्स करने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने 4, 4 माइनस 1 3, यानी कि नंबर ऑफ रिलैक्सेशंस हमें कितनी बार करना है 3 टाइम्स करने हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो 3 टाइम्स जब रिलैक्सेशन किया तो इसका वेट कितना आया देखो 3, इसका 5, इसका 8, इसका -2। वंस अगेन वी हैव टू रिलैक्स, एक बार और रिलैक्स करते हैं, तो -2 प्लस 5 कितना आया 3, यानी कि अब इसका वेट कितना आ गया 3, और 3 प्लस 3 नया वेट कितना आ गया 6, और 6 माइनस 10, 6 माइनस 10, तो ये रिलैक्सेशन ये -2 की जगह क्या आ गया -4, -4 आ गया, -4 अगेन एक बार और रिलैक्स करते हैं, तो -4 प्लस 5 कितना आ गया 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना आया 4, तो इसकी जगह क्या आ गया 4, तो 4 माइनस 10 कितना आया
4 माइनस 10 -6 प्लस 5 -1। तो कहने का मतलब हमें रिलैक्सेशन कितनी बार करना था? 3 टाइम्स करना था। लेकिन 3 टाइम्स रिलैक्सेशन के बाद भी अगर हम इसको रिलैक्सेशन करते हैं तो एक नई वैल्यू निकल के आती है। तो अकॉर्डिंग टू बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम वी हैव टू रिलैक्स ओनली n-1 टाइम्स। लेकिन n-1 टाइम्स के बाद भी अगर हम रिलैक्स करते हैं तो नई वैल्यूज आती हैं जो कि ऑप्टिमम वैल्यूज हैं। ठीक है ना? सो इन बेलमैन फोर्ड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम कि if the Bellman-Ford algorithm have the negative weighted graph in a cycle, then it can't give the correct answer in n-1 relaxations। यानी कि n-1 relaxations में हमें जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर फाइंड नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? n-1 टाइम्स के बाद भी अगर हम रिलैक्सेशन करते हैं तो हमें नई वैल्यूज निकल के सामने आती है। ठीक है ना? यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो 3 टाइम्स ही होना था, लेकिन हमने क्या किया, 3 टाइम्स जब रिलैक्सेशन किया तो ये वैल्यू निकल के सामने आई थी। देखो इंफिनिटी, 8 और 6, 3 टाइम्स रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम जब जब रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। नेक्स्ट टाइम जब रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो -2 आ रही है। तो इस तरह से this is called the drawback of Bellman-Ford algorithm. So this is how the Bellman-Ford algorithm will works.